भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है भारतीय सेना के जवानों का आभार जताना, सेना के लिए धनराशि जुटाना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए काम करना। इस दिन को मनाने की परंपरा 1939 से चली आ रही है। 28 अगस्त 1939 को रक्षा मंत्री ने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के फैसले के बाद से हर साल 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के लिए लोग बैज और स्टिकर बेचकर सशस्त्र बलों की बेहतरी के लिए धन इकट्ठा करते हैं। इस खास मौके पर नागरिकों के बीच छोटे झंडे बांटे जाते हैं और उनसे डोनेशन लिया जाता है। ये डोनेशन आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे फंड में दिया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है भारतीय सैनिकों, नाविकों और पायलटों का सम्मान करना, उन सैकड़ों हजार पुरुषों को श्रद्धांजलि देना जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। भारतीय सेना की बहादुरी, त्याग और समर्पण का सम्मान करना। माननीय मुख्य अधिकारी महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि आप राष्ट्रीय ध्वजारोहण करके आज के समारोह का शुभारंभ करें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी, साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज के ऊपर जाते समय अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दीधारी गार्ड कमांडर के आदेश अनुसार सैल्यूट करें।
आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी। Good evening, ladies and gentlemen. At the outset, on behalf of all personnel and the families of the Andaman Nicobar Command, let me pay our deepest gratitude to Mr. Naveen Jindal, who is a founding member and the chairman of Flag Foundation of India. We all have been inspired through various movies of the way the flags, the right to fly your flag at your place of residence in any of the Hollywood movies. But to take that forward, come back inspired and fight a personal battle right from the lower court till Supreme Court, and to win the right for all citizens of this country to unfurl the flag, national flag, at their place of residence or whichever place that they work. It's been truly inspirational with the efforts put in by his own individual capacity, the time that he spared, and the financial commitment that he has done to this. And it's something that is very close to his heart, and he had committed, despite his busy schedule, to be with us this evening. However, unfortunately, he was not able to make it, and I'm sure the CEO of this foundation, Major Ashim Kohli, who is with us today, will carry our deepest feelings and sense of gratitude back to him. I also want to express our heartfelt gratitude to you, sir, for having not only spared your time and being with us this evening, but also for his personal effort in ensuring that this event fructifies. We have been able to unfurl this flag today and this momentous occasion. His personal involvement was instrumental in taking this project to this final stage as it is there in front of us. This idea germinated in the mind of Brigadier Rahul Gupta, Commander 108 Brigade, and he personally took it up as in a mission mode project, and not only coordinated at every step, but also channelized the resources, put his team in place at every location which is required, right from its transportation, fabrication of stand for bringing it here, and the entire equipment only arrived here few days back to create this particular monumental structure and ensuring its installation in the last 3 days or so. There is tremendous work done. Well done, Rahul. And all the personnel of 108 Brigade has been actively involved in this particular event. They've been practicing, and I'm sure that the events to unfold after this will be of equal magnitude. It will epitomize the entire spirit and the ethos of the national flag. No better day that can be chosen to have this event. On the occasion of the Armed Forces Flag Day, we are unfurling this flag. And this has been an event which, like I mentioned in the beginning, started by Mr. Naveen Jindal, but now it's been accepted and sort of practiced by across the party lines. We have had the Honorable Prime Minister launching the Har Ghar Tirangas as a mission, and that has now become a norm on every occasion, be it Independence Day or on Republic Day. We also have a number of state governments which have now taken up this similar project. I remember in 75 years of independence, the Delhi government itself installing 75 flags of almost similar magnitude. This flag will not only inspire us, men and women in uniform, but to our families, and most importantly, the children who file past this, whether it is to the way to the school or in leisure time. This will also epitomize the spirit of unity and diversity for which the flag stands for, and also symbolizes the spirit of this command of jointness and integration, and live up to the motto of Sangye Shakti. I want to wish each and every one of you
All the best and Jai Hind. Thank you. धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय मेजर जनरल असीम कोहली जी। Jai Hind and very good evening. Respected Commander-in-Chief, Andaman Nicobar Command, Air Marshal Balakrishnan, Commander 108 Brigade, Brigadier Rahul Gupta, all officers, ladies, GSTO जवान and equivalent of 3 services, families, बच्चे और जितने मीडिया कर्मी जो प्रेस से आए हुए हैं, मीडिया से आए हैं, सबसे पहले आपको आर्म फोर्सेस फ्लैग डे की और आज उस ओकेजन पर इस झंडे के इनॉग्रेशन की मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट झंडा यहाँ लगाने का है, जैसा कि अभी भी सिंकेन ने काफ़ी चीज़ें इस बारे में बताई, आप सब जानते हैं कि फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया मिस्टर नवीन जिंदल ने स्टार्ट की थी, उसका मकसद एक था। आप सबको आज मैं इस ओकेजन पे कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो आपको नहीं मालूम होंगी बहुत लोगों को, और मैं चाहता हूं आज इस ओकेजन पर इसे एक सेरेमोनियल फंक्शन के अलावा आप कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ से जानकर जाएं जिसके बारे में हो सकता है आपको ना मालूम हो, और मुझे यकीन है मैं पूरी इंडिया में जाता हूँ 80 to 90% लोग झंडे के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होते, और इस कारण बहुत लोग झंडा लगाते नहीं हैं। मैंने बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर्स जो सिविल में हैं उनसे जब पूछा आपने झंडा अपने घर पे लगाया है, तो उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला क्यों नहीं? तो बोलते हैं कि इसके साथ कई रूल जुड़े होते हैं, हमें लगता है कोई हम किसी चीज़ में फंस ना जाए। मुझे बड़ी हैरानी होती है और दुख भी होता है, तो मैंने सोचा इस ओकेजन पे आप सबको कुछ चंद बातों से मैं अवगत कराऊँ। पहली बात, आप शायद जानते होंगे कि आज़ादी के 57 साल तक हमें एक आम नागरिक को यह हक नहीं था कि आप अपने घर या ऑफिस पे 365 दिन झंडा लगा सके। इसके लिए मिस्टर नवीन जिंदल ने तकरीबन 10 साल की एक कानूनी लड़ाई लड़ी और अंत में 23 जनवरी 2004 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया कि अपने घर या ऑफिस में 365 दिन सम्मानपूर्वक झंडा लगाना हर एक भारतीय नागरिक का ये एक मौलिक अधिकार है। उसके बाद ये अधिकार तो मिल गया, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं हुई। कुछ कारण थे, उन कारणों पे अब इस समय मैं समय के अभाव कारण नहीं जाऊंगा, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था। तो ये अधिकार मिलने के बाद भी जब लोगों ने इसे पूर्णतया उसका अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, तो साथ साथ में एक फ्लैग फाउंडेशन की स्थापना हुई। उसके साथ में ही फ्लैग फाउंडेशन ने ये एक अपना विजन रखा कि हम झंडे को और झंडे के रूल्स के बारे में जनता को अवगत कराएंगे और झंडे का रिस्पेक्ट के साथ में डिस्प्ले 365 दिन इसके लिए लोगों को एनकरेज करेंगे। और उसके साथ ही सिलसिला शुरू हुआ 2009 से मॉन्यूमेंटल फ्लैग लगाने का पब्लिक एरियाज के अंदर। अभी उसके बाद में लगातार हम सोशल मीडिया के द्वारा बाकी मीन्स से कुछ रूल्स के बारे में लोगों को बताते हैं, और हमें बड़ी खुशी हुई जब लास्ट ईयर उसमें हमारा क्या रोल था मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई जब हम ये फैसला किया गया कि 75 साल जो आज़ादी किए हैं उसको मनाने के लिए हर घर तिरंगा का अभियान चलाया जाएगा। तो लेकिन उसमें मुझे फिर हैरानी हुई कि लोगों ने 15 अगस्त के बाद झंडा उतार लिया। जब पूछा क्यों उतार लिया, तो बहुत एजुकेटेड लोगों ने भी ये बात बोली कि गवर्नमेंट ने तो बोला था 13 से 15 तक झंडा लगाना है, तो इसलिए लोग हमने झंडा उतार लिया उसको। अभी हम अगले 26 जनवरी को 15 अगस्त को लगाएंगे। तो मैं कुछ रूल्स झंडे से जुड़े हैं जो मैं चाहता हूँ आप इसे ध्यान से सुने, खुद एजुकेटेड हो अगर आपको ये बात नहीं मालूम थे, और इसे सभी फैलाएं, सभी जगह सबके साथ शेयर करें। और आर्म फोर्सेस अगर इस चीज़ को कॉन्फिडेंटली सबको बताती है और इसको अपनाती है, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक सिंबॉलिक जेस्चर होगा एक और अच्छे अभियान का आर्म फोर्सेस के द्वारा। पहला रूल जो मैंने बताया, 365 दिन आप झंडा लगा सकते हैं। दूसरा, क्या आप रात को आपको झंडा उतार देना चाहिए? जवाब है नहीं। गवर्नमेंट रूल बोलती है जहां तक संभव हो सूर्योदय से सूर्यास्त तक झंडा लगाएं, लेकिन ये प्रोविजन के बारे में भी लाइन इसमें काट दी गई पिछले साल हर घर झंडा के अभियान के टाइम पे। तो रात को भी आप झंडा लगा सकते हैं। हाँ, अगर पब्लिक प्लेस पे लगा हुआ है तो उस पर रोशनी का इंतजाम हो, क्योंकि उसकी हाइट के कारण कुछ चीज़ें साथ में जुड़ी होती हैं। तीसरा सवाल, क्या झंडा सिर्फ कॉटन, खादी या सिल्क का बनाना चाहिए?
इसके बारे में पिछले 15 अगस्त से पहले आंसर था यस। पिछले 15 अगस्त को गवर्नमेंट ने ये इसमें ऐड कर दिया कि आप पॉलिएस्टर का झंडा भी लगा सकते हैं। अगली बात, क्या झंडे के जो कलर्स हैं वो किसी पर्टिकुलर धर्म के साथ जुड़े हुए हैं? जवाब है नहीं। अगला सवाल, क्या झंडा आपका जब खराब हो जाता है तो उसे झंडे को क्या करना चाहिए? इसके बारे में भी ऐसे कि मैक्सिमम लोगों को नहीं मालूम। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बोलता है कि जब झंडा खराब हो जाए, कट फट जाए या मैला हो जाए तो उसे सम्मान पूर्वक जला के या किसी अन्य सम्मानित ढंग से पूर्णतया इसे नष्ट कर देना चाहिए। ध्यान दीजिए, और एकांत में ये कार्य करना चाहिए, पब्लिकली नहीं करना चाहिए, और इसकी कोई फोटो या वीडियो इसका ना बनाए। झंडा क्या आप अपने वस्त्रों पे लगा सकते हैं? अगेन 2004 में मिस्टर जनरल जब MP थे वो पार्लियामेंट गए तो उन्हें रोका गया, उन्होंने झंडा लगाया हुआ था। तो उस समय तक उन्हें बताएगा कि ये रूल के खिलाफ है। उस समय तक एक एक्ट है, इसका एक्ट का नाम शायद किसी ने सुना हो, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। उसके तहत आप इसको अपने वस्त्रों पर नहीं लगा सकते थे। तब उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया, और उसके बाद दिसंबर 2005 में एक अमेंडमेंट के द्वारा इस एक्ट में यह अधिकार दिया गया कि आप कमर से ऊपर सम्मानित ढंग से झंडे को लगा सकते हैं। जैसे आपने देख रहे होंगे, अगर दिखता है तो लेपल पिन लगाया हुआ है, रिस्ट बैंड। आप देखते हैं हमारे इंडियन प्लेयर्स जो होते हैं क्रिकेट में हेलमेट पे झंडा लगाते हैं। तो ये अधिकार भी एक आम नागरिक को मिला। तो मैं चाहता हूँ इस ओकेजन पे एक यादगार के तौर पे आप ये जानकारी लेकर जाएं, खुद भी कॉन्फिडेंट हो। और हम एक टैगलाइन हमने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया में शुरू किया है, हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा। मैं भी अपने घर में 365 दिन झंडा लगा के रखता हूँ। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब बड़ी शान से, कॉन्फिडेंटली और सम्मान के साथ 365 दिन अपने घर या ऑफिस में झंडा लगाएं। अंत में मैं कमांडर 108 ब्रिगेड राहुल गुप्ता, उनकी टीम और खासकर लेफ्टिनेंट अंशुल बहल, जो मेरे एक्चुअली में वो मेरे पीछे पड़े रहे थे इस प्रोजेक्ट को पुश कराने में अर्लियर, और कंप्लीट टीम जिन्होंने, मैंने कल रात को भी यहाँ देखा बहुत लोग काम कर रहे थे, सबको, आप सबको एक बार धन्यवाद भी बोलना चाहता हूँ कि आपने इतनी इज्जत से झंडे को लगाया। और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि देश की सेवा में आप लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे यूनिफॉर्म में, चाहे आप फैमिली या बच्चे जो भी काम कर रहे हैं, हम सब मिलके देश को आगे बढ़ाएं और एक ऐसा मजबूत देश बनाएं जो सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अभी मैं सभी अतिथिगणों से अनुरोध करती हूँ कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें और इस ध्वजारोहण समारोह को यादगार बनाने के लिए आ रहे हैं नंबर 1 इंडिपेंडेंट अंडमान एंड निकोबार NCC के वीर कैडेट्स। गीत के बोल हैं, हम सब भारतीय हैं।
समारोह की अगली प्रस्तुति है खुखरी नृत्य, जो कि गोरखा जवानों और उनकी खुखरी के बीच
प्रस्तुति। अब अगली प्रस्तुति देशभक्ति गीतों की श्रृंखला, जिसको एक सुर में गाने जा रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल ब्रिजगंज के होनहार नन्हे मुन्ने बच्चे। तो आइए इन बच्चों का स्वागत करते हैं तालियों के साथ। Thank you.
हमारे नन्हे मुन्ने कलाकारों के इस मनमोहक प्रस्तुति के
हिस्सा है। प्राचीन काल में इसका उपयोग सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूच करने तथा युद्ध के दौरान सैनिकों का मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करने के लिए किया जाता रहा है। अब आपके समक्ष इस संध्या की अंतिम प्रस्तुति, जिसमें गोरखा राइफल्स और 8 सिख के बैंड द्वारा एक संयुक्त प्रस्तुति की जा रही है, जिसमें विभिन्न डिस्प्ले कहाँ से बोलिए कितना है किससे आ रहा है भाई हमारे पीछे किससे है अच्छा ठीक है एक मिनट हम ना भाई बिजगंज आया है नीचे वगैरह करनी है हम आगे लेता ठीक है हम बिजगंज आए आगे लेता ठीक है आपसे
Marshal Saju Balakrishnan, Ati Visist Seva Medal, Vayu Medal, Commander-in-Chief, Andaman and Nicobar Command, Major General Ashim Kohli, Sena Medal Bar, retired, CEO, Flag Foundation of India, esteemed guests, media members, all ranks and families, and beloved children. Our national flag is a powerful symbol that represents the country's history, unity, and aspirations. It is a source of pride and patriotism for the people of India and plays a crucial role in shaping our national identity. It is indeed auspicious that this unfurling has manifested on a monumentous day, the Armed Forces Flag Day. It is also a solemn coincidence that the flag's height of 108 feet is also the identity of our brigade. I am sanguine that the tricolour, hoisted at the heart of Bridgegun Military Station, which stands before us as a formidable emblem, encapsulating the core values of loyalty, duty, respect, selfless service, honor, integrity and courage, will steer every soldier in our Quad Services environment. It will further inspire every citizen to wholeheartedly dedicate themselves to the noble pursuit of nation building. Now, on behalf of all ranks of Amphibian Brigade, I extend my heartfelt gratitude to the SINCAN, whose generosity in sparing his valuable time has enriched this event and elevated its grandeur. We are indeed grateful to Mr. Naveen Jindal, the President, Flag Foundation of India, who could not be present amongst us today, for his immense contribution towards spreading the message of our Tiranga to every Indian household. And especially to Major General Ashim Kohli for his unwavering commitment and guidance towards fulfilling this dream. Last but not the least, I place on record the support by our air warriors and the zeal and tireless effort of all the personnel of 108 Mountain Brigade and the MES who have toiled day and night to ensure the success of this significant event in a very short time span. I once again thank everyone for being here today. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु मेडल, कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड, मेजर जनरल आशीम कोहली, सेना मेडल एंड बार, रिटायर्ड CEO, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया से अनुरोध करती हूँ कि 108 माउंटेन ब्रिगेड के सभी रैंकों की तरफ से इस ध्वजारोहण समारोह की यादगार के तौर पे एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें। टैंकर की लाइट है। नहीं सॉरी, टैंकर की लाइट लगा मेरे को। लगा है टैंकर को। धन्यवाद सर। अब मैं मेजर जनरल अशीम कोहली, CEO, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया से निवेदन करती हूँ कि फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सिंकैन साहब और कमांडर 108 माउंटेन ब्रिगेड को सम्मान एवं यादगार के तौर पे एक भेंट प्रदान करें। धन्यवाद सर।
अब मैं सभी अतिथिगणों से अनुरोध करती हूँ कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद।